কিভাবে দূরসঞ্চারের মাধ্যমে রিমোটের সাহায্যে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। আয়ুষ্মান ভারতের দীপ্ত আলোকে আলোকিত হোক পশ্চিমবঙ্গবাসী। দুজন মিলে করছেন। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार का प्रयास है कि बीमारी कम हो, साथ ही बीमारी पर होने वाला खर्च भी कम हो। इसलिए हम आयुष्मान भारत योजना लेकर आए हैं। ये आयुष्मान भारत की कार्ड और बेनिफिट बंगाल के अंदर सीमित नहीं रहेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितना भी हॉस्पिटल गवर्नमेंट और प्राइवेट में एम्पैनल्ड है, सब हॉस्पिटल में आप लोग को ये सुविधा मिलेगा, जिसके लिए मैं लंबे समय से प्रयासरत था और जिसको शुभेंदु अधिकारी जी ने उसको कार्य रूप दिया है और आज सफल किया है। इसके लिए मैं बहुत অসুস্থতা কখনো বলে আসে না। চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে যে কোনো সময়, কিন্তু সেই খরচের বোঝা যেন কোনো পরিবারের খুশি না কেড়ে নেয়। এই লক্ষ্যেই দেশ জুড়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষার অভিযানে এবার যুক্ত হল পশ্চিমবঙ্গ। আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা রাজ্যের আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলির জন্য প্রতি বছর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সর্বোচ্চ 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত মিলবে ক্যাশলেস ও পেপারলেস চিকিৎসার সুবিধা। আজ থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে হাসপাতালে ভর্তির প্রক্রিয়া। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 1,43 লক্ষ পরিবার অর্থাৎ 6 কোটিরও বেশি মানুষ পাবেন এই স্বাস্থ্য সুরক্ষার সুবিধা। 70 বছর বা তার বেশি বয়সী প্রবীণ নাগরিকদের জন্য রয়েছে বিশেষ সুবিধা আয়ুষ্মান বয় বন্দনা কার্ড, আর রয়েছে পোর্টেবিলিটির সুবিধা, অর্থাৎ কাজের প্রয়োজনে এই রাজ্যের বাইরে থাকা পরিযায়ী শ্রমিক বা প্রকল্পভুক্ত নাগরিকরা মুম্বাই, দিল্লি, চেন্নাই দেশের যে কোনো প্রান্তে এই সুবিধা পাবেন। সুস্থ পশ্চিমবঙ্গ গড়বে সুস্থ ভারতবর্ষ। আরেকবার করতালি দিয়ে আপনারা স্বাগত জানান। পশ্চিমবঙ্গ সারা দেশের সঙ্গে যুক্ত হলো, সেতু হচ্ছে আয়ুষ্মান ভারত। উই থ্যাংক শ্রীমতী অনুপ্রিয়া Patel, Honorable Union Ministry of State, Ministry of Health and Family Welfare, and Ministry of State, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India, for joining hands with Honorable Chief Minister to inaugurate this scheme. পরবর্তী প্রকল্প মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনা। এর অধীনে প্রায় 80 লক্ষ পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যারা ইতিমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে। আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার আওতাভুক্ত নন, তারা কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন। এক্ষেত্রে একইভাবে দেশের যে কোনো প্রান্তে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মতন সমস্ত চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যাবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। যারা আয়ুষ্মান ভারতে আসছেন না তার জন্য রাজ্য সরকার নিজস্ব স্কিম ডিক্লেয়ার করেছে, মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনা। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা আরো সুনিশ্চিত করতে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে চালু হলো মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনা। যে সমস্ত আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলি আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় নেই কিন্তু স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত, তারাই এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনায় রয়েছে বছরে সর্বোচ্চ 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ক্যাশলেস চিকিৎসা পরিষেবার সুবিধা। প্রায় 80 লক্ষ পরিবার এই সুবিধা পাবেন। আগে থেকে থাকা রোগের ক্ষেত্রেও প্রথম দিন থেকেই মিলবে এই স্বাস্থ্য বীমার কভারেজ। এখন আর চিকিৎসার জরুরি প্রয়োজনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না অর্থ, কারণ সাথে আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভরসা। সুস্থ পশ্চিমবঙ্গ গড়বে সুস্থ ভারত। আরো একবার জোরে করতালি হয়ে যাক।
বাংলার প্রতিটি দৃষ্টিপাক স্বচ্ছতা, প্রতিটি দৃষ্টিপাক সুদৃষ্টি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের আরও একটি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সুদৃষ্টির সূচনা হতে চলেছে। এই উদ্যোগের বিশেষ ব্যবস্থা হলো শিশুদের জন্য চশমা, 6 বছরের নিচে শিশুদের জন্য বিনামূল্যে চশমা, যাতে দৃষ্টিশক্তির সমস্যাগুলি জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দ্রুত সংশোধন করা যায়। চোখের জন্য শিবির, চোখের শিবির প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েত ও শহরে স্থানীয় সংস্থায় বছরে 2 বার করে চোখের শিবির, যাতে প্রতিটি পরিবারে প্রতিরোধমূলক ও চিকিৎসামূলক পরিষেবা পৌঁছে যায়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি দৃষ্টিপাক স্বচ্ছতা, প্রতিটি দৃষ্টিপাক সুদৃষ্টি, এই অঙ্গীকার নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের আরও এক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সুদৃষ্টির সূচনা হলো। গ্রাম থেকে শহর, রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে সুদৃষ্টি প্রকল্পে মিলবে বিনামূল্যে চোখের চিকিৎসা, ছানি অপারেশন, চশমা বিতরণ এবং অন্যান্য চোখের সমস্যার চিকিৎসার সুবিধা পাবেন উপভোক্তারা। সরকারি ও মান্যতাপ্রাপ্ত বেসরকারি চোখের হাসপাতাল এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে এই পরিষেবা মিলবে। সবার চোখে স্বচ্ছ দৃষ্টি, সবার জন্য সুদৃষ্টি। এবার আমরা দুটি মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যাকে আমরা মৌ বলি, সে স্বাক্ষর হবে। প্রথমে অমৃত ফার্মেসি। অমৃত আসলে একটা অ্যাক্রোনিম, AMRIT, অ্যাফোর্ডেবল মেডিসিন অ্যান্ড রিলায়েবল ইমপ্লান্টস ফর ট্রিটমেন্ট। চিকিৎসার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধ এবং নির্ভরযোগ্য ইমপ্লান্ট। এই আউটলেটগুলোতে ব্র্যান্ডেড এবং জেনেরিক ওষুধ, হৃদরোগ এবং ক্যান্সার চিকিৎসার ওষুধ এবং IOL, পেসমেকার ও স্টেন্ট সহ বিভিন্ন ধরনের ইমপ্লান্ট 50% পর্যন্ত ছাড়ে পাওয়া যাবে। হিন্দুস্তান লাইফ কেয়ার লিমিটেডের মাধ্যমে সমস্ত মেডিকেল কলেজ এবং জেলা হাসপাতাল সমেত মোট 61টি আউটলেট স্থাপন করা হবে। আমরা MOU সাইনটা দেখব, তার আগে আমরা একটা ভিডিও দেখে নিই। ওষুধের দাম যেন চিকিৎসার পথে বাধা না হয়। চিকিৎসার খরচের চিন্তা কমিয়ে স্বাস্থ্যসেবায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আরো এক যুগান্তকারী পদক্ষেপের সূচনা হলো। পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার চালু হলো অমৃত ফার্মেসি পরিষেবা। এখানে বাজার দরের তুলনায় 50% পর্যন্ত ছাড়ে মিলবে বিভিন্ন ব্র্যান্ডেড ও জেনেরিক জীবনদায়ী ওষুধ, উচ্চমানের ব্র্যান্ডেড পেসমেকার, স্টেন্ট, ইমপ্ল্যান্ট ও IOL লেন্সেও মিলবে উল্লেখযোগ্য ছাড়। সুগার, ব্লাড প্রেশার, হৃদরোগ কিংবা ক্যান্সার চিকিৎসার খরচ কমিয়ে স্বাস্থ্যসেবাকে আরো সাশ্রয়ী করতে ইতিমধ্যেই রাজ্যের 100টি হাসপাতালে অমৃত ফার্মেসির পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। অমৃত ফার্মেসি, ওষুধের সাশ্রয়, চিকিৎসায় স্বস্তি, জীবনের নতুন ভরসা। এবার এই মৌ স্বাক্ষর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব শ্রী নারায়ণ স্বরূপ নিগম এবং শ্রী বেনি জোসেফ, ডিরেক্টর টেকনিক্যাল অপারেশন, হিন্দুস্তান লাইফ কেয়ার লিমিটেড, তাদের মধ্যে আদান প্রদান হচ্ছে এই ফাইলের। এরপর দ্বিতীয়টি, PMBJP, প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনৌষধি পরিযোজনা। এর অন্তর্গত প্রধানমন্ত্রী জনৌষধি কেন্দ্র PMBG কে ভারত সরকারের একটি ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প, যার লক্ষ্য বাজার মূল্যের তুলনায় 50 থেকে 80% পর্যন্ত ছাড়ে উচ্চমানের জেনেরিক ওষুধ ও কনজিউমারেবল
সরবরাহ করা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামীণ স্তর পর্যন্ত সমস্ত হাসপাতালকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রায় 458টি জন ঔষধি কেন্দ্র খোলার উদ্যোগ নেবে। চলুন দেখে নিই এই ভিডিও। চিকিৎসার জন্য ওষুধের বিপুল খরচ কমিয়ে নাগরিকদের আর্থিকভাবে স্বস্তি দিতে পশ্চিমবঙ্গের হাসপাতালগুলিতেও চালু হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি কেন্দ্র। প্রথম ধাপে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে চালু হচ্ছে 458টি জন ঔষধি কেন্দ্র। আগামী দিনেও আরো বাড়ানো হবে জন ঔষধি কেন্দ্রের সংখ্যা। এখানে বাজার মূল্যের তুলনায় 50% পর্যন্ত ছাড়ে মিলবে উচ্চমানের জেনেরিক ওষুধ এবং বিভিন্ন সার্জিক্যাল ও অন্যান্য চিকিৎসা সংক্রান্ত সরঞ্জাম। গ্রাম থেকে শহর রাজ্যের সর্বত্র মিলবে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি কেন্দ্রের পরিষেবা। রাজ্যের মানুষের জনকল্যাণে বদ্ধপরিকর পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আর আবার এই মৌস্বাক্ষর হবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে ডক্টর শ্রী নারায়ণ স্বরূপ নিগম এবং শ্রী সুরজিৎ দাস সিইও। এই ঐতিহাসিক দিনে প্রধানমন্ত্রী জনৌষধি প্রকল্পের জন্য ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যান্ড মেডিকেল ডিভাইসেস ব্যুরো অফ ইন্ডিয়া PMBI ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্যে মৌস্বাক্ষর হলো শ্রী শুভাশিস দাস সিইও PMDBI। Thank you very much. And now I'd like to take this moment and request our Honorable Union Minister of State, Ministry of Health and Family Welfare and Minister of State, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India, Srimati Anupriya Patel जी। मैं माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे कृपया आगे बढ़े और अपने प्रेरणादायी शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए माननीय मंत्री महोदया के लिए। आयुष्मान दिवस के इस शुभ अवसर पर आज मंच पर विराजमान पश्चिम बंगाल के अत्यंत लोकप्रिय, कर्मठ और जुझारू मुख्यमंत्री माननीय श्री शुवेंदु अधिकारी जी, मंच पर विराजमान केंद्रीय मंत्री माननीय भाई सुकांतो मजूमदार जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के राज्य सरकार के मंत्री माननीय डॉक्टर शरदवत मुखोपाध्याय जी और मंच पर मौजूद हमारे अन्य विभागों के राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, इस मंच पर उपस्थित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राज्य सरकार की माननीय राज्य मंत्री बहन सुमना सरकार जी, पूर्व सांसद और एक उम्दा कलाकार श्री मिथुन चक्रवर्ती जी, मंच पर मौजूद पश्चिम बंगाल सरकार में मुख्य सचिव श्री मनोज अग्रवाल जी और भारत सरकार के हमारे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ श्री सुनील बर्नवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी लोकसभा और राज्यसभा के माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, भारत सरकार और राज्य सरकार के समस्त अधिकारी और कर्मचारीगण और कोने कोने से आज यहाँ चलकर आए सभी सम्मानित हमारे नागरिक बंधु और मीडिया के साथी, आप सभी को मेरा नमस्कार, वंदे मातरम। आज का ये दिन ऐतिहासिक भी है और चिरस्मरणीय भी है। आज एक बहुत ही
अहम कार्य की शुरुआत होने जा रही है। इसलिए मैं आप सभी को जो यहाँ मौजूद हैं और पश्चिम बंगाल की जनता को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूं। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर आज जो हमारा लक्ष्य है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, यानी इस राज्य के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवा की पहुंच सुनिश्चित हो, इस दिशा में मिलकर कदम बढ़ाया है और हमारे इस सामूहिक संकल्प को और बल देने के लिए एक नया अध्याय प्रारंभ किया है। आज 16 अगस्त है और 16 अगस्त पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज है। अभी हमारे भाई माननीय केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार जी उसकी चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि जहां एक तरफ इतिहास का ये काला दिन, इतिहास की वो पीड़ा हमारे मन के किसी कोने में दर्ज है, उसके साथ ही हमें 16 अगस्त को एक नए स्वरूप में भी याद रखना है। और आज भारत सरकार और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने जो निर्णय किया है, उससे 16 अगस्त पश्चिम बंगाल के आम जनमानस की स्मृतियों में एक नए स्वरूप में, एक स्वर्णिम दिवस के रूप में, आयुष्मान दिवस के रूप में दर्ज होने जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और माननीय मुख्यमंत्री श्री शुवेंदु अधिकारी जी के सरकार के 100 दिन का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है और इस उपलक्ष्य में आपकी सरकार ने जो ऐतिहासिक निर्णय किया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करती हूं और उनकी सरकार के इस निर्णय की सराहना भी करती हूं कि आज के इस दिन हमने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसके साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने का निर्णय किया है। आज से 2 महीना पहले 8 जून 2026 को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं नई दिल्ली आए थे और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को पश्चिम बंगाल राज्य में लागू करने के लिए भारत सरकार के साथ राज्य सरकार ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। और इस एमओयू पर हस्ताक्षर के साथ ही पश्चिम बंगाल देश का 36वां ऐसा राज्य बना जिसने दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम को अपने राज्य की जनता के लिए लागू करने का निर्णय किया। और यह दर्शाता है कि आज राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसे आम जनमानस की चिंता है, लोक कल्याण की चिंता है और इसलिए आम जनमानस के जीवन से जुड़ा हुआ इतना बड़ा फैसला उन्होंने किया है। नहीं तो हमने देखा है बीते 1.5 दशक में पश्चिम बंगाल की जनता को स्वास्थ्य की दृष्टि से कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बार नहीं अनेक बार प्रयास किया। हमारे विभागीय मंत्री माननीय श्री जेपी नड्डा साहब ने कई बार तत्कालीन मुख्यमंत्री से बात की और उनसे कई बार आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये जन कल्याण की योजना है, ये गरीब की चिंता करने वाली है, ये बुजुर्ग की चिंता करने वाली है, ये जरूरतमंद की चिंता करने वाली है। और राजनीतिक मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन राज्य की जनता को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित होनी ही चाहिए, इसलिए इसे राज्य में लागू किया जाए। लेकिन
जब जन कल्याण सरकार की प्राथमिकता में नहीं होता है तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं को 1.5 दशक का इंतजार करना पड़ता है। मुझे आज बहुत प्रसन्नता भी है, बहुत संतोष भी है कि हम इस राज्य में इस योजना को लागू करने जा रहे हैं और इस योजना के आज लागू होने के बाद से राज्य के 1,43,00,000 परिवार ऐसे हैं, 1,43,00,000 परिवार यानी 6 करोड़ की आबादी, 6 करोड़ की आबादी इस योजना से लाभान्वित होने जा रही है। यानी ये सारे पात्र लाभार्थी 6 करोड़ आम जन यदि किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर कर दी है। और पश्चिम बंगाल में आज 1030 ऐसे प्राइवेट और सरकारी अस्पताल हैं जो इस योजना के तहत एम्पैनल्ड हो चुके हैं, संबद्ध हो चुके हैं। यानी इनमें से किसी भी अस्पताल में जाके जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरी है, जो भी पात्र व्यक्ति है, वो 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा ले सकता है। लेकिन साथ ही मैं आप सबको यह भी कहना चाहती हूं कि हमारे बंगाल के बहुत सारे आमजन देश के दूसरे राज्यों में भी जाते हैं और हमारी इस योजना के अंदर हमने इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी का एक फीचर रखा है, एक प्रावधान रखा है। यानी केवल बंगाल के 1030 एम्पैनल अस्पतालों में ही नहीं, बल्कि अगर बंगाल के मतदाता, बंगाल के आमजन, बंगाल के पात्र लाभार्थी देश के किसी भी कोने में, किसी भी अन्य राज्य में हैं, तो आज इस योजना के तहत देश में 38,000 से ज्यादा, मोर देन 38,000 एम्पैनल प्राइवेट और सरकारी अस्पताल हैं जिसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार स्वास्थ्य की सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। और ये एक ऐसी योजना है जिसमें आज हमारी जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो पोषण कर्मी है, आशा बहनें हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं, उन्हें भी इस 6 करोड़ में सम्मिलित किया गया है। 3 लाख से ज्यादा हमारे पश्चिम बंगाल की ऐसी फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, आशा और आंगनवाड़ी, जो भी इस योजना की लाभार्थी हैं। हमारी आशा बहनें, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता ये जमीन पर काम करती हैं और हर किसी के स्वास्थ्य की चिंता करती हैं, लेकिन इनके स्वास्थ्य की चिंता करने के बारे में अगर किसी ने सोचा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सोचा है। और इस 6 करोड़ में मुझे आपके बीच ये कहते हुए भी संतोष है कि राज्य के 35 लाख से अधिक बुजुर्ग आबादी भी शामिल है। और भारतीय समाज में बुजुर्गों का क्या स्थान होता है हम सब जानते हैं। हमारे बुजुर्ग हमारे परिवार की, हमारे समाज की रीढ़ हैं। उनके अनुभवों का खजाना हमें जीवन के संकट के दौर में संबल देता है। बुजुर्ग हमारे संस्कारों की नींव रखते हैं। बुजुर्ग हमें भावनात्मक संबल देते हैं और पूरे परिवार को एकता के सूत्र में बांध कर रखते हैं। लेकिन वही बुजुर्ग जब बढ़ती उम्र के साथ किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं तो उनके स्वास्थ्य की चिंता कौन करेगा। और देश में आज ऐसे बहुत सारे गरीब परिवार हैं जहां बुजुर्गों को यदि कोई गंभीर रोग हो जाए तो उन्हें या तो उस दर्द को, उस तकलीफ को सहन करते रहना पड़ता है या किसी के आगे अपने इलाज के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है कि हमारे देश का बुजुर्ग, जो हमारे समाज की रीढ़ है, वो सर उठाकर जिएगा। और इसलिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आज देश भर के अंदर हमने 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को, चाहे वो किसी भी
इनकम ग्रुप के परिवार से हो, वो किसी संपन्न परिवार से हो या किसी गरीब परिवार से हो, किसी मध्यम वर्गीय परिवार से हो, किसी भी इनकम ग्रुप से वो आते हो, 70 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु का जो भी बुजुर्ग है वो इस योजना का लाभार्थी है। और पश्चिम बंगाल के अंदर आज आयुष्मान दिवस के लागू होने के बाद से हमारे 35 लाख ऐसे बुजुर्ग हैं जो इस योजना के दायरे में आ जाते हैं। यानी अब वो सम्मान से जी सकेंगे और अपने इलाज के लिए उन्हें किसी का भी मुंह देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रबंध हमने किए हैं और ये हमारी सरकार की सोच है कि स्वास्थ्य केवल सेवा नहीं है, स्वास्थ्य सामाजिक न्याय का, सोशल जस्टिस का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। और देश के अंदर किसी भी परिवार के सामने ऐसी मजबूरी, ऐसी विवशता नहीं होनी चाहिए कि यदि उस परिवार का कोई भी सदस्य किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसे उसके इलाज और परिवार की आर्थिक सुरक्षा के बीच में किसी एक को चुनना पड़े। 2018 में हमने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया था और उससे पहले की कहानी यह थी कि देश में करोड़ों ऐसे परिवार थे, गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, कि जहां यदि कोई भी एक सदस्य किसी गंभीर रोग से पीड़ित हो जाए तो उसके इलाज के खर्च से पूरे परिवार की माली हालत खराब हो जाती थी और कई परिवार गरीबी रेखा के नीचे खिसक जाते थे। लेकिन इस योजना के आने के बाद आज परिस्थिति बहुत बदल गई है और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि ये एक ऐसी योजना है जिसने समाज में धीरे धीरे एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया है। आज किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को इलाज के खर्च की जो चिंता होती है उससे मुक्त किया है, परिवारों में खुशहाली लाने का काम किया है। यह इस योजना का बहुत बड़ा योगदान है और हम लंबे समय से ये राह देख रहे थे कि पश्चिम बंगाल में भी हम इस योजना को लागू कर पाए और यहां के आम जनमानस को भी उसका लाभ दिला सके। और आज हम सभी को खुशी है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं। और जितने भी पात्र लाभार्थी हैं उनको मैं कहना चाहती हूं कि इस योजना के तहत जो आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा, ये कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। यानी इस कार्ड के लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यह पूरी तरीके से कैशलेस है, पेपरलेस है और फैमिली साइज की कोई सीमा नहीं है, यानी परिवार के सदस्यों की कोई सीमा नहीं है इसमें। तो आपके परिवारों की कितने भी सदस्यों की संख्या हो, यदि परिवार लाभार्थी है तो परिवार का कोई भी सदस्य इलाज की सुविधा 5 लाख रुपए तक की देश के 38,000 से अधिक एम्पैनल्ड अस्पतालों में ले सकता है। और आज आयुष्मान भारत योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी लागू हुई, इसका भी शुभारंभ हुआ। ऐसे बहुत सारे लाभार्थी परिवार हैं जो हमारे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के दायरे में नहीं आ पा रहे हैं, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का भी शुभारंभ किया, जिसमें ऐसे 80 लाख परिवार जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में नहीं आ पाते हैं, ऐसे 80 लाख परिवार इस मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में आ सकेंगे। और इन दोनों योजनाओं को इस तरह से अलाइन किया गया है कि कोई भी लाभार्थी यदि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभार्थी भी है तो वो भी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के जो एम्पैनल्ड अस्पताल है उसमें जाकर 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा ले सकता है। तो एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया है, एक नई शुरुआत है, एक नया अध्याय लिखा जा रहा है कि कैसे हम किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को एक एक नागरिक तक पहुंचा सकें और खास तौर से उन नागरिकों तक जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं और जिन्हें सहारे की जरूरत है। और इसके साथ ही आज 2 और बड़े काम हुए। आपने देखा अभी आपके सामने एक MOU एक्सचेंज हुआ अमृत फार्मेसीज को लेकर।
अमृत फार्मेसी भारत सरकार का एक ऐसा प्रयास है, एक ऐसी पहल है जिसमें हम जो तमाम ब्रांडेड दवाएं होती हैं, सर्जिकल आइटम्स होते हैं, कंज्यूमेबल्स होते हैं, मेडिकल डिवाइसेस होती हैं, इम्प्लांट्स होते हैं, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, और किसी भी परिवार में यदि ब्रांडेड दवाओं, इम्प्लांट्स, मेडिकल डिवाइसेस को यदि खरीदा जाता है तो जेब से होने वाला खर्च ये बहुत अधिक हो जाता है। कई परिवारों का जो मंथली बजट होता है वो बिगड़ जाता है। तो अमृत फार्मेसी के जरिए हमने एक ऐसी पहल की है कि ये सारी जो इम्प्लांट्स हैं, सर्जिकल आइटम्स हैं, ब्रांडेड दवाएं हैं, इन सभी को हम देश के आम नागरिक तक 50 से 80% तक कम दामों पर, यानी बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर उनको उपलब्ध करा सके। और मुझे आपके बीच में बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने देश के कोने कोने में जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, देश में मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, टर्शरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी जगह अभी तक लगभग 280 ऐसे अमृत फार्मेसी स्थापित किए हैं। और पश्चिम बंगाल के अंदर भी अब इस MOU के बनने के साइन होने के बाद, एक्सचेंज होने के बाद, अब आपके राज्य में भी हमें राज्य सरकार ने 100 ऐसे स्वास्थ्य केंद्र बताए हैं जिसमें मेडिकल कॉलेजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, 100 हेल्थ फैसिलिटीज जिसमें अब ये अमृत फार्मेसी स्थापित की जाएंगी। और 6,500 6,500 से ज्यादा ऐसी ब्रांडेड दवाएं हैं, इम्प्लांट्स हैं, सर्जिकल आइटम्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, जो यहाँ के आम जनमानस को उन अमृत फार्मेसीज के जरिए बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम दाम में उपलब्ध होंगी। और एक और महत्वपूर्ण कार्य, जो हमारी एक और महत्वाकांक्षी योजना है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, इसके तहत भी हमने एक कंसेंट लेटर एक्सचेंज किया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरे देश भर में, और खास तौर से जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पे जन औषधि स्टोर्स की स्थापना हो। अभी तक हमने देश में 20,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की स्थापना देश के कोने कोने में की है। और आज इस कंसेंट लेटर के एक्सचेंज के बाद मुझे खुशी है कि यहां की सरकार ने 458 ऐसी लोकेशंस हमें दी हैं जिसमें हमारे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC, PHC, ऐसी 458 लोकेशंस हैं जहां पर इन जन औषधि केंद्रों को स्थापित किया जाएगा। और इन जन औषधि केंद्रों में जो जेनेरिक दवाएं हैं और तमाम सर्जिकल आइटम्स हैं, आज 2100 से ज्यादा ऐसी जेनेरिक दवाएं और सर्जिकल आइटम्स हैं, 300 से ज्यादा सर्जिकल आइटम्स हैं, 2100 से ज्यादा जेनेरिक दवाएं हैं, जो हम इन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से आम जनमानस को बाजार मूल्य से 80% तक कम दाम पे उपलब्ध करा रहे हैं। तो अब वो सारी सुविधाएं कुछ ही समय में राज्य की जनता को भी उपलब्ध होंगी। कुल मिलाकर इन सारे प्रयासों से हमारी कोशिश यही है, इलाज पर होने वाला खर्च कम हो, दवाओं पर होने वाला खर्च कम हो, और एक आम नागरिक के लिए स्वास्थ्य कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय न रह सके। भारत की सरकार आज स्वास्थ्य के संबंध में एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण परिवर्तन लेकर आई है। हमारी सरकार केवल बीमार व्यक्ति को इलाज करने में, बेहतर इलाज करने में, इलाज के खर्च को कम करने पर ही ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि हमारी सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है कि हम लोगों को स्वस्थ कैसे रख सके।
तो हम प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ केयर पर भी काम कर रहे हैं और हम क्यूरेटिव हेल्थ केयर पर भी काम कर रहे हैं, पैलिएटिव हेल्थ केयर पर भी काम कर रहे हैं। मोटी बात यह है कि भारत सरकार ने स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता सूची में रखा है और पहले की सरकारों में ऐसा हुआ है कि हेल्थ कभी भी एक प्रायोरिटी विषय नहीं रहता था, लेकिन हमारी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2047 तक एक विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। तो विकसित भारत तभी बनेगा जब स्वस्थ भारत बनेगा और स्वस्थ भारत बनाने के लिए हमें स्वस्थ पश्चिम बंगाल भी बनाना है। इसलिए हमारे सारे प्रयास, हमारी सारी पहल, हमारे सारे इनिशिएटिव्स, हमारी सारी स्कीम्स, इन सब का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम कैसे पश्चिम बंगाल की जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा को और सुदृढ़ कर सकें और एक स्वस्थ, सुपोषित, सशक्त और समृद्ध बंगाल का निर्माण कर सके। तो इतना ही कहते हुए मैं पुनः आप सभी को आयुष्मान दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं पुनः अभिनंदन करती हूं कि उन्होंने राज्य में इस योजना को लागू करने का निर्णय किया। हम सबकी आपको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार जिस तरह की कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना के साथ, स्पिरिट के साथ काम कर रही है, हम निश्चित रूप से जो यहाँ की महान जनता ने एक अपना जबरदस्त मैंडेट देकर एक नई सरकार को, माननीय शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार को जो मौका दिया है, हम निश्चित रूप से उनकी सारी अपेक्षाओं पर, उनकी सारी उम्मीदों पर और उनके विश्वास पर खरा उतरने में कामयाब होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। অনুপ্রিয়া প্যাটেল জি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এখন আমরা সেই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমরা এখন শুনবো আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারীর ভাষণ। আমি আপনাদের ধৈর্যকে সম্মান জানাই। প্রায় দুটোর আগে এসেছেন, 5:30 বাজে। আমি বেশি কথা বলবো না, কারণ কথাগুলো সবই রিপিট হয়ে যাবে। প্রথম হচ্ছে আজকের দিনটি বেছে নিলাম কেন। আজকের দিন 1946, দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ডে। 10,000 হিন্দুকে খুন করা হয়েছিল কলকাতাতে। আগের সরকার খেলা হবে দিবস করত, আর বর্তমান সরকার আয়ুষ্মান ভব, আয়ুষ্মান দিবস পালন করছে আপনাদের শতায়ু প্রার্থনা করে। আমি অনুপ্রিয়া पटेल जी के मेरा दिल से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने पूरा भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कैसे हम लोग एक साथ काम कर सकता है, पूरा उन्होंने बता दिया। আমাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার আছেন, মহাগুরু আমাদের সকলের অভিভাবক মিঠুন চক্রবর্তী আছেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর শারদ মুখোপাধ্যায় সহ, কার নাম বাদ দি, দিলীপ দা, স্বপন দা, অগ্নিমিত্রাদি সবাই এসে গেছেন, সুমনা সরকার থেকে কলিতা মাঝি, অশোক দিন্দা থেকে জগন্নাথ সরকার, ইন্দ্রনীল খান এটা ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছেন, মনোজ আগরওয়াল জি আছেন আমাদের চিফ সেক্রেটারি, কেন্দ্র থেকে এসেছেন মান্যবর সুনীল জি, আমাদের নারায়ণ স্বরূপ নিগম, সবাইকে, শরৎ দ্বিবেদী, সবাইকে অভিনন্দন। আর অনেকে আপনারা এসেছেন বিপুল সংখ্যায়, অনেক দূরে দূরে, উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনায়
আয়ুষ্মান কার্ড যারা গ্রহণ করেছেন, আপনাদের আর বেশিক্ষণ আমি ধৈর্যচ্যুত ঘটাবো না। আমি শুধু আপনাদের কয়েকটা বিষয় তথ্য দেব যেটা জানা দরকার পশ্চিমবাংলার মানুষের। এক হলো, যারা আয়ুষ্মান ভারতে যুক্ত হলেন তারা আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা পাবেন, যে কথা সকলে বলে গেছে। এই পরিবারের সংখ্যা হচ্ছে 1,43,00,000, জনসংখ্যা হচ্ছে 6 কোটি। এর বাইরে যারা থাকলেন 80 লক্ষ পরিবার, তাদেরকে আমরা মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমাতে আনলাম। সুবিধা কি? স্বাস্থ্য সাথীতে আপনারা পশ্চিমবঙ্গে প্রাইভেট এবং সরকারি মিলে প্রায় 1500 মতো হসপিটালে কিছু কিছু সুবিধা পেতেন, সবাই পেতেন না। এবার থেকে পশ্চিমবঙ্গে 1240টি বেসরকারি আর 627টি সরকারি হসপিটালে আপনারা এই দুটো সুবিধাই একসঙ্গে পাবেন। এর সাথে 70 বছর ঊর্ধ্ব নাগরিক তারা সকলে এই সুযোগ পাবেন। এই সুযোগ এতদিন ছিল পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে। বিগত সরকার জনগণের দাবিতে একবার সিএমসি ভেলোরে 1 বছরের জন্য চালু করেছিল স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড। পরবর্তীকালে সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। আজকে যে দুটো স্কিম চালু হলো, এটা ভারতবর্ষের 38,604টি হসপিটালে আপনারা সুবিধা পাবেন, অর্থাৎ আসমুদ্র হিমাচল এই বেনিফিট আপনারা গ্রহণ করবেন। এর সঙ্গে 100টি অমৃত ফার্মেসি, 467টি প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি যোজনা যার আজকে এগ্রিমেন্ট হলো, এবং সুদৃষ্টি কর্মসূচির মধ্য দিয়ে চোখের চিকিৎসা আমরা করলাম। আমি এই কর্মসূচির আগে সামনে যারা বসে আছেন প্রায় ঘন্টা 3 আমাদের প্রাইভেট হসপিটালগুলির কর্মকর্তারা, ম্যানেজমেন্ট, ইনক্লুডিং রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত হসপিটাল, এরা আমাদের একটা কথাই শুধু বলেছে যে আমরা ক্যাটাগরি বিতে আছি, অর্থাৎ মুম্বাই, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর আর কলকাতাতে সেম রেট রয়েছে। কয়েকটা ক্ষেত্রে তাদের কিছু বক্তব্য আছে, আমি কথা দিচ্ছি सरकार सेटाओ विवेचना करबे। मैं सुनील जी का साथ बात कर लिया है, ये मौका है स्टेट गवर्नमेंट का, ये काम भी हम लोग करेगा। चीफ सेक्रेटरी को मैं बता दिया, मैं ये काम करूंगा। আপনাদের এর সাথে যেটা বলা দরকার, বিগত সরকারের যে স্কিম সেটা তো পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং 1700 আইটেমের উপরে চিকিৎসা পেতেন। এটা তো গোটা ভারতে পাবেন, তার সঙ্গে আরো 250টা বাড়িয়ে 1950টা স্কিম এর মধ্যে যুক্ত হয়েছে। এমনকি ডক্টর মুখার্জি আমাকে না বলেছেন বলতে তবুও বলছি, আপনার নি হিপ রিপ্লেসমেন্টও আয়ুষ্মান ভারত মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনাতে আপনারা পাবেন, এ সুযোগও রয়েছে। আসুন সবাই মিলে আয়ুষ্মান মন্দির তৈরি করে পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে ভালো রাখি। আমি আর কথা বাড়াবো না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 100 দিন আগামীকাল পূরণ হবে। বিস্তারিত বক্তব্য পুরুলিয়ার মানুষকে পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন করতে গিয়ে পুরুলিয়ার মানবাজার থেকে কালকেই দেব, কালকেই তারা জানবে।
আমি পরিশেষে কলকাতা ত্রাতা গোপাল মুখার্জিকে অন্তর থেকে প্রণাম নিবেদন করে আয়ুষ্মান দিবসের সফলতা প্রার্থনা করে আমার কথা শেষ করলাম। ভারত মাতা কি জয়। অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে। একবার একটু জোরে করতালি দিয়ে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব। অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার। এবার আসি বয়োবন্দনা প্রকল্পে। 70-এর অধিক বয়স্ক প্রবীণ নাগরিকেরা তাদের আর্থসামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে বয়োবন্দনা প্রকল্পের সুবিধা পেতে চলেছেন। There is no other barrier, only 70+ people. There is no other category. So ladies and gentlemen, বয়োবন্দনা প্রকল্পের দুজন উপভোক্তার হাতে কার্ড তুলে দিতে চলেছেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়। মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি শ্রী হরিদুয়ার প্রসাদ, বয়স 80 বছর, একজন প্রবীণ নাগরিক এবং অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সদস্য। তার পরিবারের সদস্য জুটে মিলে কাজ করেন এবং আয় খুবই কম। বয়োবন্দনা স্কিমের মাধ্যমে তিনি বিনামূল্যে চিকিৎসা ও হাসপাতালের পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ পাবেন। অনেক অনেক শুভেচ্ছা ওনাকে। জোরে হাততালি হয়ে যাবে। ওনার হাতে তুলে দিচ্ছেন কার্ড মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়া। তারপর মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি শ্রী পরিমল দাস, পরিমল বাবুর হাতে কার্ড তুলে দিচ্ছেন। আবারও একবার জোরে হাততালি হয়ে যাক আপনাদের প্রত্যেকের তরফ থেকে। এখন চলে যাচ্ছি আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা। শ্রী হেমন্ত গন্ড, বয়স 20 বছর, তপশিলি উপজাতির সম্প্রদায়ের সদস্য। আগে অসুস্থ হলে তাকে দৈনিক মজুরি হারানোর পাশাপাশি নিজের পকেট থেকে চিকিৎসার খরচ বহন করতে হতো, কিন্তু আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা তাকে ক্যাশলেস স্বাস্থ্য পরিষেবা, নিরাপত্তা ও চিকিৎসার সুযোগ দেবে। নেক্সট আপ পুতুল হেমরাম, তারপর রূপালী কোলে। এইবার এগিয়ে আসছেন বেলা মুখার্জি। তারপর ডেকে নিচ্ছি মিলি মণ্ডল। মিলিদির পর ডেকে নেব মিস্টার বিশ্বনাথ সেনাপতি। এই মুহূর্তে মঞ্চে রয়েছেন শ্রী বিশ্বনাথ সেনাপতি। নেক্সট আপ শ্রী অভিজিৎ মানিক। একটু জোরে হাততালি হবে প্রত্যেকের তরফ থেকে, যারাই উপস্থিত রয়েছেন একটু জোরে হাততালি দেবেন। কার্ড গ্রহণ করছেন শ্রী অভিজিৎ মানিক। তারপর ডেকে নিচ্ছি আরমান হোসেন মোল্লা, বয়স মাত্র 10 বছর। পেয়ে যাচ্ছে ABPMJ। জোরে হাততালি হওয়া চাই এই মুহূর্তটার জন্য। এবার ডেকে নেব শ্রীমতী নাসিমা বিবি। অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই উপভোক্তাদের, যারা এই মুহূর্তে মঞ্চে এসে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের হাত থেকে কার্ড নিচ্ছেন। এবং মিঠুন দা এখন এগিয়ে আসছেন। আবার একটু জোরে করতালি চাই আপনাদের প্রত্যেকের তরফ থেকে। হল ভর্তি যারা রয়েছেন তাদের সবার কাছে বিনীত অনুরোধ, জোরে হাততালি হওয়া চাই। কনক কর্মকার, এগিয়ে আসছেন অল্পনা বাগ। শ্রীমতী আলপনা বাগ এগিয়ে আসছেন। অনেক অনেক শুভেচ্ছা আপনাদের প্রত্যেককেই। সোনালী পায়রা, অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই আবারও একবার। শ্রীমতী উষা রানী বেরা, শ্রী নারু গোপাল রং, একটু জোরে হাততালি হওয়া চাই সবার কাছে বিনীত অনুরোধ, একবার জোরে হাততালি হয়ে যাবে। শ্রীমতী রুমকি সর্দার, তারপর ডেকে নিচ্ছি শ্রীমতী অঞ্জলি বিশ্বাস। নেক্সট আপ
Mr. Bijoy Mondol. তারপর ডেকে নিচ্ছি শ্রী বিভুপদ বিশ্বাস, শ্রীমতী জুবেদা বিবি, জুবেদা বিবির হাতে কার্ড তুলে দেওয়া হলো। অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। মঞ্চে রয়েছেন শ্রীমতী ভারতী সরকার। নেক্সট আপ শ্রীমতী ডোনা চৌধুরী, শ্রীমতী রেণুকা প্রধান, এবার মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনা, প্রথমে কুন্তী নস্কর। কুন্তী নস্কর, মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনা। এরপর অমল সর্দার, সরস্বতী মল্লিক, সরস্বতী মল্লিক নেই, অভিজিৎ পাল, থ্যাংক ইউ। আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের শেষে এসে পৌঁছেছি। আরো একবার আসুন আমাদের মাতৃবন্দনার মন্ত্র, ভারতের রাষ্ট্রগীত বন্দে মাতরম এবং তারপর আমাদের জাতীয় সঙ্গীত, এর প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই, উঠে দাঁড়াই। मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजय धृत खर करवाले केवल माँ तुम्ही अबले बाहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम तुम्ही वेद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदि तुम्ही धर्म त्वं हि प्राणाः शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा घड़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलाम्
मृदुलां सुजलां सुफलां मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं धरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मान